کہ ہمارا لاہور نسل در نسل 8 سال بعد 1.37 ارب کے ترقیاتی کاموں کے لیے تیاریاں مکمل 137 بلین کے ترقیاتی کاموں کا شیڈول طے کر لیا گیا 35 ارب روپے ڈی سی آسان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے ابتدائی مرحلے میں 20 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز اوپن کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا تفصیلات بارے۔ جی ہاں، بات چونکہ شہر لاہور ہے، لاہور کے لیے جو ہے وہ ترقیاتی جو اسکیموں کا ایک جال ہے وہ بچھایا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ مکمل کرنے کا ٹاسک سونپا۔ اپریل کے مہینے سے یہ ٹاسک سونپا گیا، مگر اس کے بعد اگست کے مہینے میں دوبارہ سے اس کی جو ہے اپ گریڈیشن ہوئی اور اس کے بعد اب یہ جو ہے فائنل مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور اس کا سلوگن جو رکھا گیا ہے ہمارا لاہور نسل در نسل، اور 8 سال بعد شہر لاہور میں ترقیاتی اسکیموں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ 1.37 ارب کے ترقیاتی کام شروع کروانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ خزانے کی چابی جو ہے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے سپرد کر دی گئی ہے۔ محکمہ فنانس پنجاب نے 35 ارب روپے ڈی سی لاہور کے آسان اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ لاہور ریویمپنگ پروگرام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 137 بلین کے ترقیاتی کاموں کا شیڈول بھی طے کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں 20 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز اوپن کیے جا رہے ہیں، جس میں واسا کی 15 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز اوپن کیے جائیں گے۔ 8 نومبر کو 197 اسکیموں کی ٹینڈرنگ اوپن کی جا رہی ہے، جبکہ 9 نومبر کو واسا کی 189 اسکیموں کی ٹینڈرنگ اوپن کی جائے گی۔ ترقیاتی اسکیموں میں ٹف ٹائلز، پی سی بی، ڈرینیج سسٹم، واٹر سپلائی اور اسٹریٹ لائٹس کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ راوی زون کی 29 اسکیموں کے لیے 5 ارب 10 کروڑ 70 لاکھ کے فنڈز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جبکہ داتا زون کی 22 اسکیموں کے لیے 3 ارب 57 کروڑ 42 لاکھ روپے کے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں۔ نصر زون 2 کے 4 اسکیموں کے لیے 1 ارب 15 کروڑ 86 لاکھ کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح نصر زون 1 کی 17 اسکیموں کے لیے 5 ارب 11 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں۔ شالامار کی 13 اسکیموں کے لیے 2 ارب 21 کروڑ 22 لاکھ کے فنڈز، جبکہ گلبرگ زون کی 5 اسکیموں کے لیے 74 کروڑ 64 لاکھ کے فنڈز، اسی طرح سمنا آباد کی 4 اسکیموں کے لیے 84 کروڑ 55 لاکھ کے فنڈز رکھ دیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اور اس ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے جو ہے اب ابتدائی مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی جو ٹینڈرز ہیں وہ 8 نومبر کو اوپن ہونے جا رہے ہیں اور اس کی اوپننگ کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل صاف ترین شفاف ترین رکھ دیا گیا ہے، جس میں ای ٹینڈنگ سسٹم کے لیے تمام کنٹریکٹرز کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک اوپن سسٹم رکھا گیا ہے، جس میں تمام کنٹریکٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے بڈ کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی وقت ختم ہوگا تو ان کی بڈ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور کمپیوٹر سسٹم رکھا گیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر لاہوریوں کو دکھانے کے لیے ایس ایم ڈیز کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں تمام جو کنٹریکٹرز ہیں ان کو سامنے بٹھا کر ان کے ٹینڈرز اوپن کر کے ان کے ای ٹینڈنگ سسٹم کے بعد جب فائنل راؤنڈ آئے گا تو ان کو ٹینڈرز اور ایوارڈ کرنے کے لیے بھی ان کو سامنے بٹھایا جائے گا، ان کے نام کے ساتھ ان کو ٹینڈر ان کے حوالے کیے جائیں گے اور اس کے بعد کام شروع کروا دیا جائے گا۔ اسی سسٹم کے لیے کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا ٹاسک ڈی سی لاہور کے سپرد ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسکیم کے معیار اور ڈیڈ لائن و ٹائمز لائنز کے مطابق تکمیل ہوگی اور اس کے لیے تمام افسران کو پہلے سے متحرک کیا گیا ہے، ان کی باقاعدہ طور پر کلاس وغیرہ رکھی گئی، ان کو مہم کے لیے اس کے لیے تیار کیا گیا تاکہ جو یہ ترقیاتی کام ہے یہ ایک بہت بڑا ذمہ ہے۔ پورے لاہور میں ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھایا جائے گا، جس میں پہلے مرحلے میں جو ہے 20 ارب کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو ہے وہ گلی محلوں کی کھار بچھاڑ میں ٹف ٹائلز کا استعمال کیا جائے گا، سیوریج سسٹم کی بحالی کو اور واٹر آپ کا شکریہ عمران۔ تو اب بات کریں اسموک کی، تو آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموک کے ڈیرے برقرار ہیں۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 600 سے بھی تجاوز کر گئی۔ حکومتی سطح پر اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ طبی ماہرین کی شہریوں سے ماسک پہننے کی اپیل ہے۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، باغوں کا شہر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے۔ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں اسموک کی اوسط شرح
600 से भी तजावज़ कर गई। और शहर लाहौर के बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। अलबत्ता तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक कर लें, मोटरसाइकिल जो सवार हैं वो ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जब से स्मोक जो है वो शहर लाहौर में बढ़ना शुरू हुई है तो अस्पतालों में सैकड़ों की तादाद में मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी और ख़ास तौर पर फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो तेज़ी से शहर लाहौर में फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो शहरी अपनी मदद साहब के तहत तमाम तरह हिफाजती इक़दामात पर जो है वो अमल दरामद लाजमी करें। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से भी जो है वो चंद मुस्बत इक़दामात उठाए गए हैं ताकि स्मोक को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। शहर लाहौर के चंद मकामात पर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों को जो है वो 9 नवंबर तक तातीलात का ऐलान भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चलान भी काटे जा रहे हैं और ईंटों के भट्टों को भी जो है वो मुस्मार किया जा रहा है। जो है वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, वो फैक्ट्रियाँ भी जो हैं वो बंद की जा रही हैं। तो पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इक़दामात किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि शहर लाहौर में स्मोक को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर जैसे ही मौसम साजगार होगा शहर लाहौर में मसनूई बारिश बरसा दी जाएगी ताकि स्मोक की शरह को कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया सामिया सईद। भारत से आने वाले धुएं ने लाहौर की फ़ज़ाओं में जहर घोल दिया। भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर धान की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। माहिर माहौलियात नसीम उर रहमान कहते हैं तवीलुल मुद्दती इक़दामात के ज़रिए ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, इस हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं कि लाहौर में आलूदगी के हवाले से सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। अब इसमें जहाँ बहुत सारे मुकामी अमामल कार फरमा हैं वहाँ पर इंडियन फैक्टर जो है वो किस हद तक अपना रोल प्ले कर रहा है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं माहिर माहौलियात नसीम उर रहमान साहब के साथ। ये जो अक्टूबर के एंड से लेके नवंबर के एंड तक ये जो 1 महीने का पीरियड है, नॉर्मली हमने पिछले 6-7 साल में ऑब्ज़र्व किया है जो विंड पैटर्न है, विंड डायरेक्शन जो है वो 30 से 31 अक्टूबर जिसके करीब और आगे फिर जो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इसमें हमारी तरफ हो जाती है। और उनका जो कल्टीवेटेड एरिया है राइस क्रॉप के लिए, धान के लिए, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। हमारे भी 10 अजला है बट उनका ज़्यादा है। और फिर जब वहाँ से विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है और ये ख़ासकर ये जो टाइम मैंने बताया अक्टूबर एंड से नवंबर एंड तक ये जो दरमियान का पीरियड है, तो उस वक्त तमाम उनकी कसाफतें वो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। अच्छा नसीम साहब, पहले भी ये सारा कुछ होता था लेकिन 1000 की सतह से तजावुज़ कर जाना ये तो बहुत अलार्मिंग है। हाँ, ये बिल्कुल अलार्मिंग है। इसमें मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। और जो इस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इस वक्त हुकूमत पंजाब चीज़ें करना चाह रही है, उनको हैप्पी सीडर और मशीनरी और इस तरह की मैकेनाइज करने की ज़रूरत महसूस कर रही है या इक़दामात कर रही है, इसको मज़ीद तेज़ करना चाहिए। और एक मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा कहूँगा, जो वीट हार्वेस्टर है उसको धान की फसल की कटाई के लिए बैन करना चाहिए। जहाँ जहाँ वो चलती है उस फसल में लाजमी आग लगानी पड़ती है क्योंकि उसका 1 से 1.5 फुट तना वहाँ पे रह जाता है। बहुत शुक्रिया जी, ये सूरत हाल जी। और इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से इंदिया भी दिया गया है कि वो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखेंगी। अल्लाह करे कि ये सूरत हाल बेहतर हो जाए दोनों ममालिक के ताउन के साथ। जी आपका शुक्रिया सुहेल। अब आपको बताएं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल का दारोमदार हवाओं पर। मशरकी हवाओं ने एक बार फिर लाहौर के जानिब रुख कर लिया है। भारतीय पंजाब के शहर हरियाणा से आलूदा हवाएं लाहौर में दाखिल। लाहौर की फ़ज़ा आइंदा 3 रोज़ तक जहर आलूद रहेगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। डेप्टी डायरेक्टर अंजुम रियाज का कहना है कि हवाओं का रुख तब्दील होने से फ़ज़ा बेहतर होगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक रेड अलर्ट जारी किया गया है कि जिसमें ये बताया गया है कि जो स्मोक है उसकी शिद्दत आइंदा 24 घंटों में जो है मज़ीद बढ़ेगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बुरी तरह मुतासर होगा। अंजुम रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, ये बताएगा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने रेड अलर्ट भी जारी किया गया, क्या वजूहात हैं कि स्मोक कंट्रोल ही नहीं हो पा रही?
जी देखिए, गवर्नमेंट जो हमारे लोकल फिनोमिनाज हैं, लोकल सोर्सेज हैं, उस पे तो काम कर रही है और हमारा प्रोएक्टिव ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, डिफरेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो हमारे पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स हैं उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एक फिनोमेना जिसकी बेसिस पे हम ये अलर्ट और इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं वो विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड का है। अगर आप देखें तो विंड जो है हमारी मशरकी हवाएं चल रही हैं और वो दिल्ली से हवा को लेके उनकी जो आलूदा हवा है उनकी कसाफतें जो हैं, क्योंकि बॉर्डर के अलॉन्ग स्टबल बर्निंग और इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं जो पोल्यूशन जनरेट करती हैं वो कैरी करके हमारे यहाँ लाहौर में इंटर हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका AQI राइज़ करता है। तो इस वजह से हम जो है ये अलर्ट जारी करते हैं कि जो फीडिंग एयर है वो एक बड़ा एक सोर्स है लाहौर में AQI को ख़राब करने का, वो मौजूद बनते हैं। तो लिहाजा हम शहरियों से इल्तमास करते हैं कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क पहनें और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें। जी जी बिल्कुल, आपने अंजुम रियाज की गुफ्तगू सुनी। जब तक ये मशरकी हवाएं जो हैं वो चलती रहेंगी तब तक जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहतर नहीं हो सकता है। महकमा माहौलियात की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो लोकल फैक्टर हैं या मुकामी जो अवामिल हैं उन पर तो कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जो बैरूनी अवामिल हैं जिसमें मशरक़ से आने वाली हवाएं हैं उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, और ये फैक्टर है जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा देखने को ठीक है, मिला। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। मुज़र सेहत फ़ज़ा से बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब मुतासिर। हॉस्पिटल्स में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की बीमारियां आम हो गईं। 24 घंटों के दौरान सरकारी हॉस्पिटल्स में 8000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। MSMU हॉस्पिटल का कहना है कि बच्चे और बुजुर्ग बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। मुज़र सेहत फ़ज़ा से बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब मुतासर हो रहे हैं। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा हो रहा है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की बीमारियां आम हो गई हैं। 24 घंटों के दौरान सरकारी अस्पतालों में 8000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। मज़ीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, आगाह कीजिएगा सूरत हाल बारे। बिल्कुल, आज भी लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से ज़ायद है, जिसकी वजह से शहर में जो फिजा है वो जहर आलूद है, जिसकी वजह से बच्चे, बीमार अफराद, बुजुर्ग, खासकर सांस में दुश्वारी के जो मरीज हैं, नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, इन सब में जो 3 गुना इजाफा है बीमारियों में वो देखने में आ रहा है। जबकि जो महकमा सेहत की रिपोर्ट है कि अस्पतालों में गुज़श्ता एक दिन के दौरान 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, 8000 से ज़्यादा जो मरीज हैं ये रिपोर्ट में। सबसे ज़्यादा केसेस म्यू अस्पताल में आए हैं जो कि 2600 से ज़्यादा है। जिनाह अस्पताल में 2200 से ज़्यादा, जबकि गंगाराम अस्पताल में 1900 से ज़्यादा। इसी तरह सर्फिस और जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से MSMU अस्पताल प्रोफेसर फैसल मसूद का ये कहना है कि जो बच्चे और जो बुजुर्ग अफराद हैं इनकी जो नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में 3 गुना जो इजाफा है ये देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में कैजुअलिटी भी बढ़ सकती हैं। तो शहरियों को चाहिए कि जो मास्क है इसका इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, घर आएं, आंखों को वॉश करें, फेस को धोएं और इसके साथ साथ जो गर्म मशरूबात है इसका इस्तेमाल करें ताकि इस खतरनाक मौसम में खुद को बचाया जा सके। जी आपका बहुत शुक्रिया। तो अब खबर शामिल करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए शजरकारी करने में मुबैना कोताही, शजरकारी में PHA की जानिब से मेवाकी जंगल को शामिल ही नहीं किया गया। इंक्वायरी और फंड्स की किल्लत ने मेवाकी जंगल मंसूबा बंद करवा दिया। जंगल लगाने के लिए माजी करीब में निजी कंपनियों के साथ होने वाले मुआहदे भी अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। उसामा, स्मोक पर काबू पाने में मुबैना तौर पर प्लांटेशन और शजरकारी करने में कोताही बरती गई। दरख्त लगाने में हुकूमत की तरफ से जो मनसूबाजात का ऐलान किया गया था वो तमाम मनसूबे बंद कर दिए गए, जबकि 9 मुंतखब पंजाब हुकूमत ने शजरकारी मुहिम से मेवाकी तकनीक को ही निकाल दिया। मेवाकी जंगल लगाने के लिए माजी करीब में निजी कंपनियों के साथ होने वाले जो मुआहदे हैं वो भी अमल दरामद के मुंतज़िर हैं, जबकि शजरकारी में PHA की जानिब से रवां माली साल में किसी भी मेवाकी जंगल को शामिल ही नहीं किया गया। ज़राए ये बता रहे हैं कि इंक्वायरियां और फंड्स की किल्लत होने की वजह से मेवाकी जंगल मंसूबा बंद किया गया। गुज़ार दौर में 50 लाहौर में मेवाकी जंगल लगाए गए, उसके बाद भी अर्बन फॉरेस्ट्री के किसी भी मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि LD और PHA के ताउन से जो शौकत खानम चौक, शौकत न्याज बेग और PIA रोड पर मेवाकी जंगल लगाना था वो भी मंसूबा बंद हो चुका है। इसी तरह LD एवेन्यू 1, मोहल्लनवाल और जुबली टाउन का मेवाकी जंगल मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया गया है।
DHA इंतजामिया ने इस हवाले से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री की दीगर तकनीक के जरिए शजरकारी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।